بات کر میں اپنے اور اپنے اسکول کی طرف سے اور اپنے پورے علاقے کی طرف سے ڈاکٹر اختر حسین میموریل ٹرسٹ کے جو ذمہ داران ہیں اور بالخصوص میڈم سمیرہ گل کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دور افتادہ بستی کے اندر جو بہت سارے مسائل میں گری ہوئی ہے اور صفائی کے حوالے سے ایک انتہائی عام قدم اور پیش رفت کی ہے اور یہاں کے ہمارے لوگوں کو اور یہاں کے ہماری جتنے بھی کمیونٹی ہے اس میں صفائی کے حوالے سے جو بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس پر میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہوں کہ انہوں نے جس کام کا آغاز کیا اور جو ہمیں بنیاد فراہم کی ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کر اپنے اس ماحول کو اور اپنے گرد و نواح کو اسی طرح صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ. معزز حاضرین، بہت عزیز بچوں، السلام علیکم. ڈاکٹر اختر حمید میموریل ٹرسٹ کی طرف سے چک جلال الدین میں جو مہم شروع کی گئی ہے، چک جلال الدین کو صاف رکھنے نہیں بلکہ بنیادی طور پر صاف کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر اس کو صاف رکھنے کے لیے میڈم سمیرہ گل نے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر جو کام شروع کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے، یہ ان کی بہت بڑی ہمت. میں اگر کہوں کہ اس علاقے میں آ کے جہاں پر ابھی صفائی کے کنسیپٹ پہ لوگ خفا ہو جاتے ہیں، ابھی بچے جنہوں نے اس صفائی مہم میں ہفتے میں حصہ لیا، میرے پاس مختلف قسم کی رپورٹس آتی رہیں کہ گھروں میں جا کے جب بچوں نے وہ جو لٹریچر تھا وہ دروازہ کھٹکھٹا کے تقسیم کیا تو ان بچوں کو طرح طرح کے کامنٹس لوگوں نے گھروں سے دیے کہ جی اگر یہ ہو جائے تو پھر صفائی یا فلاں سے کہیں کہ وہ آ کے صاف کر جائے. ہم اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، گلی کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو بچوں، یہ سارے کا سارا جو ہمارا چک جلال الدین کے 80% لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے کہ جی ہم صرف گھر کے ذمہ دار ہیں، گلی کے نہیں ہیں، اس کنسیپٹ کو تبدیل کرنے کے لیے میڈم سمیرہ گل نے جو یہ اٹیمپٹ کی ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور ہمیں بھی اپنی سوچ کو، اپنے جو ہمارا جو تربیت ہے جو بچپن لیول سے شروع ہونی چاہیے اسے صفائی کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ٹرسٹ کا، جنہوں نے ادھر چک جلال الدین میں اپنا یہ کام شروع کیا، اور میں یہاں موجود تمام پرنسپل صاحبان کی طرف سے انہیں اپنی بھرپور جو تعاون ہے اس کا یقین دلاتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. میں سب سے پہلے میسج اسکول کی طرف سے اور اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف سے اختر حمید میموریل ٹرسٹ ان کے بانی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. اور اس کے علاوہ مس سمیرہ گل جو ہیں انہوں نے جو ایفرٹ کی ہے اس علاقے کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک انعام سے کم نہیں. یعنی یہ ایسا علاقہ ہے کہ جس کو آج تک کسی محکمے نے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی. یعنی اس کی گلیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا روڈ جو مین ہے ایک ہی مین روڈ ہے گرجا روڈ، اس کی حالت یعنی یہاں پر باہر سے کوئی بندہ آنے کا نام تک نہیں لیتا. یہ ظاہری بات ہے عام سی، یعنی کہ آپ لوگوں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ کسی ٹیکسی والے کو کہیں کہ گرجا روڈ کی طرف جانا ہے تو وہ اس سے انکار کر دیتا. اس کی مین ریزن یہی تھی کہ یہاں پر صفائی کا قطعاً انتظام نہیں، اس علاقے کی طرف کوئی آنا ہی نہیں چاہتا. تو میڈم سمیرہ نے جو ایفرٹ کیے ہیں، ان کی ٹرسٹ نے جو یہ کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. ہمیں ان کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ جو ہے وہ ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو ہفتہ صفائی منایا جا رہا ہے اس کی سب سے جو کامیاب چیز ہے وہ ڈوکسیدان چوک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا ریڑھوں کا گند تھا وہ سارا اس سائڈ پہ آ گیا.
तो शायद इसी की एक किरण है, इसी की वजह से वो सारा कामयाब चीज़ हुई है कि आपको साफ सुथरा वो रोड मिला है। और इसी सफाई की वजह से रोज़ाना आप लोगों ने जब स्कूल आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो सुबह सुबह आपके लिए सफाई के लिए वो सारे मौजूद होते हैं। किसी जगह पे आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। और ये उसी जो हफ्ता सफाई मनाया जा रहा है उसी का एक चीज़ हिस्सा है। और इसके लिए मैं हमारा स्कूल सिटी इंग्लिश स्कूल उसकी इंतज़ामिया और इस इलाके के पूरे जितने लोग हैं, जितने हमारे प्रिंसिपल साहिबान यहाँ पे खड़े हैं, उन सब की तरफ से जो अख्तर हमीद खान ट्रस्ट है उसको और मैडम मेरा गुल को तहजीब से मुबारकबाद देते हैं उसकी कामयाब इंतजाम। और इंशाल्लाह पूरा एरिया और जितने स्कूल हैं उनके तमाम तलबा और प्रिंसिपल साहब उनके साथ हैं। जिस वक्त भी उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उनके बिल्कुल शाना खड़े हों। सबसे पहले मसीही मोहब्बत में मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप सब ने बहुत अच्छा ताउन किया हमारे साथ। और ये जो बच्चे स्कूल के आए हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। खासतौर आज जो हमारे मेहमान आए हैं अब्दुल असानुल हक साहब गवर्नमेंट से हैं, सामने हैं, इनके हम शुक्रगुजार हैं। कौंसलर चौधरी गफूर साहब जो सामने हैं, जो हमारे साथ बहुत तावन कर रहे हैं, इनके हम शुक्रगुजार हैं। और तमाम स्कूलों के जो टीचर हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं मुझसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा गुल जिसने बड़ी कोशिश के साथ इस इलाके में ये सफाई का काम शुरू किया है हमीद मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से, तो ये हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारे वर्कर जो हैं इनसे बहुत खुश हैं। और हमारी कोशिश है कि इनके साथ मिलकर हम इस मुहिम को जो है ना आगे बढ़ाएं। और ये सबसे बड़ी जो खुशी की बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल इनको जरदारी साहब की तरफ से अवार्ड भी मिला है। तो ये आप सबके तावन से होगा। अगर हमारा इलाका साफ सुथरा होगा, माहौल साफ सुथरा होगा तो हमारे बच्चे जो हैं बीमारी से बचेंगे। मजीद मैं वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आप सबका फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबसे बढ़कर शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा गुल साहब का, जिनकी कोशिश से मेहनत से ये खास सफाई का इंतजाम नहीं हुआ और बहुत से बेरोजगारों को जो है वो रोजगार भी काम हुआ है। इससे जो वर्कर हैं बेरोजगार हैं जो इन पर बहुत खुश हैं। और मेरी आप सब की यही दरख्वास्त है कि आप इनके साथ तावन करें और जो हमारी किस्मत है हम आपके इलाके में आते हैं करते रहेंगे और जो मेरा गुल है इनका साथ दें। बहुत भरपूर इन्होंने पूरा हफ्ता इनके बच्चों ने स्कूलों ने एक एक घर जाके नॉक करके मैसेज किया। उसके बाद आजम साहब आजम साहब डायरेक्टर साहब फीमेल टीचर है। आगे नाम आपका मुझे पता नहीं है। तो मैं कहूँगी चौधरी साहब पहुँचना है हमारे बाद में किताब करेंगे। ये राज साहब को चाहिए चौधरी साहब अच्छा अब मैं चाहूँगी कि आदिम साहब जो साहब आप खड़े फिर आप अभी हमें तकरीब को जारी रखेंगे। आदिम साहब ये हमारी ताजा की तरफ से ना जी भरपूर एक हफ्ता हमारे साथ
खुद रोड पे झाड़ू लगा के बोर्ड की तरफ से सेकेंडरी कलेक्शन में हमारी हेल्प कर रहे हैं। सफाई में सारी जितने खड़े में उन्हें ये सुनहरा गुल सब भाई अच्छा निजाम किया और इन्हें बच्चियां तमाम की ये अपने अपने इलाके इस इलाके कोई बंदा सफाई पसंद मेरे हिसाब बहुत मेहनत कहनियां खाई गए इन्होंने लोगों की सेट किया अच्छा और साढ़े इलाके जो सफाई सुनहरा गुल डॉक्टर सुनहरा गुल ने कराई है अल्लाह की और तो ठीक है साड़ी सड़क कोई इधर हॉस्पिटल आ गया गल की सी सड़क बंदा आने से तैयार ही 4 साल असा कटे न ये हमारे ने मतलब कोई सफाई सुफाई कराने रहे हैं लेकिन उन्होंने सुनहरा गुल डॉक्टर ने जो सफाई कराई है अच्छी अल्लाह ताला इनका भी मकसद है सफाई है मेहरबानी शुक्रिया आप आ जाए मेरे दोनों खड़े होते हैं आप आ जाए सारे मतियानी साहब को दे दोनों आप दोनों खड़े हो दोनों CMA पटवारी इनकी जी हमें जाता बड़े में स्टोर है इन लोगों ने वो बहुत बड़ा ढेर जो हमारे बच्चों के घर से आया था 2 दिन इनकी ट्रॉली भी बल्कि आप देखोगे CMA का रोल हमारे साथ। अब मैं चाहूँगी कि हमारे अपना स्टाफ से पहले मैं चाहूँगी कि CMA का सेंट्री वर्कर में से कोई भी नहीं आया कदम साहब किसी सेंट्री वर्कर मेरे भाइयों ने साथियों ने मेरी तारीफ की है। मैंने कुछ भी नहीं किया ना इस हफ्ते सफाई में मैंने कुछ किया है ना इस प्रोग्राम के हवाले से मैं सिर्फ मैनेजर हूँ चीज़ें मैनेज करती हूँ काम करने वाले आप सब साथी और ये बच्चे थे उनके लिए सफाई में मेरा साथ दिया वो ये मुहाफिज हैं सफाई के जिनको हम कभी सेंट्री वर्कर नहीं बचे ई गार्ड एनवायरनमेंट जो माहौल का माहौल है ये मेरा स्टाफ है इनको मैं सलाम पेश करती हूँ जी आज दिन रात कभी इन्होंने टाइम का ख्याल नहीं किया ठीक है। CMA के लोग भी जो हैं वो भी अपनी ड्यूटी पे पूरे मेन सिक्योरिटी का काम किया लेकिन अपनी गलियों में इन्होंने अपना काम खत्म करने के बाद जैसे प्रतीक आप समझिए कि इनको जिस प्लाट पे हमने भेजा जिस नाली के लिए जिस गली में भेजा इन जवानों ने वहाँ पे हिम्मत नहीं आई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ई गार्ड जो प्रोजेक्ट है पिछले 8 सालों से हम लोग इजाज़ साहब हमारे प्रोग्रामों में भी आते थे CMA में भी हम करते रहे और वासा के ऑफिस के अंदर भी हम लोग सिर्फ सीरीज का प्रोग्राम चला रहे थे। स्कूल वालों की नोटिस की थोड़ी सी बताती चलूँ कि हम लोगों को कहते थे एक सीवरेज लाइन 1000 बीमारियां दूर। बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है कि अगर हम एक सीवरेज लाइन डालेंगे तो 1000 बीमारियां दूर हो जाएंगी लेकिन लोगों को हमारी बात ही समझ आ रही थी। पूरे 5 साल ये नारा हमने हर बैनर पे लिखा 5 साल के बाद हमने कान को इधर से पकड़ा हमने कहा खुली नाली खुली बीमारी। आपको ये नारा याद रहेगा क्या मैंने बोला खुली नाली खुली बीमारी। 4 साल से हम लोगों को ये बात समझा रही है लेकिन जहाँ पे हमने सीवरेज का प्रोग्राम किया वहाँ पे नालियाँ बंद की कैसर आबाद हमारे साथ ऐसा था गाजियाबाद में 35-40 गलियों में हमने सीवरेज डाल दी। वहाँ के लोग हमारे पास चल के आ गए उन्होंने कहा जी पहले नालियों में गंद छुप जाता था अब गंद जो है गलियों में खंभों के पास प्लाटों में आ गया तो आप सॉलिड वेस्ट का कूड़े का प्रोग्राम शुरू करें। तो पिछले 2 साल से ई गार्ड प्रोजेक्ट जो है इसको हम लेके चल रहे हैं। इस वक्त जोग सईदा गाजियाबाद कमालाबाद रावल टाउन और चक जलालुद्दीन जहाँ आप खड़े हैं चक जलालुद्दीन के मोहल्ले सादक कॉलोनी वोसिया मदनी मोहल्ला और अभी जमाली स्ट्रीट में भी हम सर्विस देने वाले हैं। सर्वे करिए 1000 घरों का इजाज़ा पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और न सिर्फ इनका कूड़ा उठाते हैं बल्कि इस कूड़े को हमने यहाँ पे एक हरियाली सेंटर बनाया है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपको वहाँ पे बुलाऊंगी इसी वीक के इख्तिताम में हम वहाँ पे अर्बन फोरम करेंगे जिसमें हम सबक कूड़ा जो घरों से लेते हैं कुछ कूड़ा तो स्वीपर जो लोग होते हैं वो ले जाते हैं
जो कुछ कूड़ा बाकी रह जाता है उसे हमने खाद बनाते हैं, और वो भी इसी इलाके के अंदर पौधों के अंदर हम टेस्ट करने जा रहे हैं। चक जलालदीन के अंदर हम 15 घर हमने सेलेक्ट किए हैं, उनको वो सब्ज खाद देंगे। बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि तनवीर आप नोट के साथ स्कूल वालों को एक पैकेट खाद का गिफ्ट करेंगे उस प्रोग्राम में, ताकि ये भी अपने स्कूलों के अंदर पौधे लगाने का जो कल्चर है जिस स्कूल के अंदर है तो वो भी चलेगा, जिसका नहीं वो पौधे लगाएंगे। तो ये हम प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, और ये आम लोगों को शऊर देने के लिए कि जहाँ पे सिर्फ 100 रुपये माहाना की सर्विस है, जो अभी तक 1000 आपकी यूनियन कौंसिल में 560 घर लेने हैं, बाकी 500 घर गाजीबाद और दूसरे इलाकों में कंटोनमेंट के इलाकों में, तो वो लोग हमें 5 चक्कर लगवाते हैं 100 रुपये के लिए। उनको शऊर देने के लिए कि ये गन, ये प्लाट, ये नालियाँ आपने भरी हैं। एक एक बच्चा मेरे साथ घरों में पूरा एक हफ्ता। मैं उन स्कूलों की स्पेशली मशहूर हूँ जिन्होंने अपने बच्चे डोर टू डोर बैनर उठा के पंपलेट है कि घर में दिया। वो बच्चे आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो लोगों को मैसेज दिया कि अपने घर की तरह अपनी गली को भी साफ रखें, अपने मोहल्ले को भी साफ रखें। ये वो प्रोग्राम था, और आज कल हमारा आखिरी दिन है सैनिटेशन वीक का। आज इख्तिताम नहीं हुआ, लेकिन आज क्योंकि इंसानी हकूक आलमी दिन भी है, और इस मौके पे हम ये चाह रहे थे कि साफ सुथरा माहौल हमारा हक है। हमने इससे पहले भी इसके ऊपर सैनिकों के आलमी दिन के मौके पे प्रोग्राम किया। आज हमने अमली तौर पे आप बच्चों को, आप लोगों को रोड पे वॉक करवाई कि कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को शर्म आए कि जो अपने घर का गन लेके दूसरों के घर के आगे छोड़ते हैं। ये मैसेज देना था, और मैं मशकूर हूँ इजाज़ साहब की। मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले इजाज़ साहब भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में एज ए डायरेक्टर वाटर एंड सैनिटेशन काम कर रहा हूँ, और बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे एरिया में जिसमें सैनिटेशन के नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, और उस एरिया में इस NGO ने आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आप लोगों के साथ हाथों में, आपके हाथों के साथ हाथ मिला के एक सैनिटेशन वीक मनाया। और ना सिर्फ ये कि आप लोगों के जो डिपॉजिट्स थे, सॉलिड डिपॉजिट्स, उनको ख़त्म किया, बल्कि गलियों की भी सफाई करवा दी, नालियों की सफाई करवा दी। अब इसके बाद हम लोगों का, जो आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप लोगों का फर्ज बनता है, आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। बच्चों को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने का मकसद ये होता है कि जो रिसर्च साबित करती है कि बच्चे जो हैं वो सबसे बेहतर मैसेज कैरियर्स हैं। बच्चे घर में जाके, स्कूल में जाके, अपने ग्रुप्स में जहाँ खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ हर वो चीज़ डिस्कस करते हैं जो एक अच्छी वो सीख के जाते हैं। तो आप लोगों की ये एक ड्यूटी बनती है कि आप इस मैसेज को, कि सफाई में ईमान है और सफाई बीमारियों से हमें बचाती है, वो अपने घरों में पहुँचाएँ। अपने एल्डर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ जब भी बैठें, उनके साथ इस चीज़ का पर उनको एजुकेट करें कि हम अपने ना सिर्फ घर को, ना सिर्फ अपने जिस्म को, बल्कि अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, और पूरे अपने जो आपकी कम्युनिटी है उसको साफ रखेंगे, तो फिर हम बीमारियों से बच सकेंगे। ना सिर्फ अपनी जिस्म की या अपने घर की सफाई से हम लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हमने चलाया, ये वक्तन आपके साथ रिफ्रेशर कोर्स के लिए, आप लोगों को रिफ्रेश करने के लिए ये फिर भी कंटिन्यू रहेगा। बट इस वक्त अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है, कभी कभार, कभी महीने में, कभी 2 महीने बाद एक सैनिटेशन वीक, जब सैनिटेशन डे जरूर मनवाएं, ताकि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को PTA मीटिंग्स में अपने इन बच्चों के एल्डर्स को बुलाएं और उनको सेंसिटाइज करें। ये चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आगे लोगों तक पहुंचानी है, और इशू सिर्फ इतना है कि आप अगर इन लोगों को सेंसिटाइज कर दें। देखिए, इस वक्त जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो पानी दे रही हैं, देखिए उन्होंने इतना लोगों को एजुकेट कर दिया है कि जी लोग पानी बॉयल करने पे तैयार हैं, बाहर से 50 रुपए की बोतल लेके पानी पीने के लिए तैयार हैं, आम पानी पीने के लिए नहीं तैयार। और ये अगर हम इनको लोगों को एजुकेट कर देंगे कि ये सफाई जो है
وہ اس سے ہم بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی لوگ اس پہ عمل کریں گے. صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا. آپ نے اپنے گھر کا گند بھی باہر کہیں نہیں رہنا, ٹھیک ہے؟ سب کو دیں گے جی, سب کو ٹھیک ہے. آج ٹھیک ہے بیٹا. کیا نام ہے, نام کیا ہے آپ کا؟ جی آپ دیں گے, صرف دیکھو. اور کون اسکول ہے جی جو ہمارے ساتھ ایکسرسائز کا بچہ, ادھر دیکھو بیٹا, ادھر دیکھو. ادھر دیکھو آپ کی یہ ہمارے جی کمیونٹی کی طرف سے جوان اشفاق, ان کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے بچے کو ہم دے رہے ہیں. بیٹا آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے. اور کون ہے